السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنتھ یم رب ذوالجلالن اس بی اکہ ساتنس یہ سلسلہ شروع کرنک توفیق عنایت کور. تعریف و حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. ام برونٛٹھ کہ بہ کر ییٚمہِ آیہِ مبارکٕچ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ ترجمٲنی تِکیازِ گیپ گٔمٕژ واریاہ. بہ کر تۄہہِ یاد دہٲنی یِم مضامین اسہِ ام برونٛٹھ یتھ سورہ شریفس منٛز پٔرۍ. بہرحال سورۃ النساء چھِ اسہِ زیرِ بحث یا زیرِ درس اور امہِ سورہ شریفٕچ کٔر مےٚ آیت نمبر 34 یعنی 34 تلاوت. ام برونٛٹھ یِم آیات اسہِ پٔرۍ تِمن منٛز پوٚر اسہِ کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن چھِ یتھ سورہ شریفس منٛز زیادٕ پہمتھ معاشرتی زندگی ہٕنٛدۍ مسٲیل بیان کٔرمٕتۍ. بالخصوٗص یم زن انسان سٕنٛدِ گھریلوٗ زندگی سۭتۍ مسٲیل تعلق تھاوان چھِ تِم مسٲیل چھِ آمٕتۍ یتھ سورہ شریفس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بیان کرنہٕ. اسی لحاظ سے آے یتھ سورہ شریفس منٛز وراثتٕکۍ احکام تہِ بیان کرنہٕ. یتھ سورہ شریفس منٛز پوٚر اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر امہِ کتھِ ہُنٛد تہِ اظہار کہ تمام دُنہِکۍ لُکھ یم زن چھِ بہرحال یہ ایک یہ زن آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے اس لیے ان میں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے. اور ام پتہ پوٚر اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کٔرۍ یم زن رشتہ یا تم خواتین ان کی نشاندہی بھی کی گئی جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور ان عورتوں کی بھی نشاندہی کی گئی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور ان عورتوں کی بھی نشاندہی کی گئی جن کے ساتھ کسی مخصوص حالات میں تو ان سے نکاح کرنا ممنوع یا ناجائز ہے لیکن اگر وہ یہ زن ممانعت ہٹ جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. بہرحال یم ساری احکام پڑھ اسہِ. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 34 کا آغاز کریں گے. ام برونٛٹھ یم زن آیات چھِ یعنی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33 تاتھ منٛز پوٚر اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ان عورتوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تمو کرے تم ساتنس یہ استفسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی مردوں کی طرح جہاد میں شریک ہو جاتے, ہم بھی مردوں کی طرح دعوت دین کے کام میں یا حصہ لیتے, اس طرح سے ہمارے درجات بھی ان کی طرح بلند ہوتے. بہرحال تاتھ پٮ۪ٹھ گئی یہ آیہ مبارکہ نازل کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض کہ ہرگز اس چیز کی تمنا مت کرو جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. بہرحال امیک احکام آئے تفصیل سان یعنی حسد کی ممانعت یا اتھے پاٹھنس اللہ تبارک و تعالیٰ سندس عطاس پر اعتراض کرن, یہ سب کچھ اس آیت کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں. اور ات مز آئے سو اصول تہ بیان کرنے کہ تمام دنیا کے مرد اور عورتیں بہرحال ان کو اپنے اعمال کا صلہ قیامت کے دن ملے گا. چاہے مرد ہو یا عورت, اگر انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو وہ اپنے نیک اعمال کا اچھا بدلہ قیامت کے روز بہرحال وصول کریں گے. اس میں یہ ممانعت یا اس میں کوئی قید نہیں ہے
कि अल्लाह बचाए कि मर्दों को ही सिर्फ नेक अमाल का बदला मिलेगा, बल्कि औरतें जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे उनको भी उनके नेक अमाल का बदला मिलेगा। बहरहाल आज जन आयत इसमें एक एतराज का जवाब दिया गया है। बहरहाल अख एतराज युन जन वरासत अहकाम पात कुनत पढ़, उसमें हमने पढ़ा कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में नस्फ हिस्सा ही मिलेगा, यानी एक मर्द को दोहरी वरासत में हिस्सा मिलता है जबकि औरत को उसके मुकाबले में सिर्फ एक हिस्सा मिलता है। बहरहाल क्या लुक मा करें एतराज कि औरतों को क्यों एक ही हिस्सा मिलता है और मर्दों को क्यों दो हिस्से मिलते हैं, तो इस आयत में उस एतराज का जवाब दिया गया है। दूसरा, जो आइली जिंदगी है, आइली जिंदगी कहते हैं जो घरेलू जिंदगी है, उसको अच्छी तरह से बसर करने के लिए जो उसूल हैं उन उसूल को भी इन आयात में बयान किया गया है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद फरमावन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अर्रिजाल, रिजाल युजन ये जमा का सेगा है। रजुलुन, रजुलुन माने मर्द, रजुल वनन अकिस मर्दस, और रिजाल कहते हैं बहुत सारे मर्द। अर्रिजालु मर्द, कव्वामूना कव्वाम है, जिम्मेदार हैं, अलन निसा किन के ऊपर, औरतों के ऊपर। मर्द जिम्मेदार है औरतों के ऊपर, बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, ये इस वजह से क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज को बाज के ऊपर फजीलत अता की है। यानी जो मर्द हजरात औरतों पर कव्वाम हैं, जो मर्द जिम्मेदार बना गया है औरतों पर, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही मर्द को औरतों के ऊपर क्या बनाया है, कव्वाम बनाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज सूरतों में मर्दों को औरतों पर फजीलत अता की है और औरतों को भी कुछ फजाइल मर्दों पर अता किए गए हैं। बहरहाल लफ्ज युजन आव इस्तेमाल करने, लफ्ज आव इस्तेमाल करने कव्वाम। कव्वाम युजन ये मुबालगा का सेगा, ये असल में निकला है कयाम से। कयाम असल में हम कहते हैं खड़ा होने को। इस पर नमाज इमसात खड़ा आसन इस हालत को क्या कहते हैं, कयाम। तो इसी कयाम से निकला है कव्वाम। और कयाम के आगे या कव्वाम के आगे अगर अला होगा तो इसका मतलब है जिम्मेदार, यानी मर्दों को जिम्मेदार बनाया गया है किनके ऊपर, औरतों के ऊपर। यानी मर्द युजन इनको जिम्मेदार बनाया गया है औरतों के ऊपर। अच्छा, मैं वो गोडनैथै यथ सूरह शरीफस मज आमद खानदानी असूल या घर यन गृहस्थी हिंद असूल तुम आमद बयान करन। तो सबसे बड़ा असूल जो खानदान को, घर को अच्छी तरह चलाने के लिए है वो ये असूल है कि मर्द जो है ये निगरान होंगे किन पर, औरतों के ऊपर। बहरहाल जिंदगी यन ये सफर, जिंदगी के सफर में मर्द और औरत ये मान लीजिए ये इस गाड़ी के दो पहिए हैं। यानी जिंदगी की जो ये गाड़ी है इसके दो पहिए हैं, एक पहिया मर्द है और दूसरा पहिया कौन सा है, औरत है। अब दोनों निभाह करके, दोनों मिलकर इस जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाते हैं। और फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस अकिस हदीसस में फरमो अगर तुम में से दो शख्स सफर को निकलें, अगर तुम ज शख्स सफरस नेरन तो एक को अपना अमीर मुकर्रर करो, आख बनोइन पानुन क्या अमीर। तो इसी तरह से अगर कोई जमात होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जमात तब तक जमात नहीं है जब तक कि इसका कोई अमीर नहीं होगा। यही मिसाल एक मर्द और औरत की है, क्योंकि ये भी जिंदगी के सफर में इकट्ठे रवा दवा हैं, इसलिए आज सफरस मज गि कहाँ अमीर आसुन। तो वो अमीर कौन होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। जिंदगी के इस सफर में, जिंदगी की इस गाड़ी में मर्द जो है ये अमीर होगा, ये जिम्मेदार होगा किसका, औरत का। अच्छा, क्यों होगा जिम्मेदार या क्यों होगा अमीर, अल्लाह तबारक व तआला फरमान बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, ये इस वजह से है क्योंकि मर्द को या क्योंकि बाज को अल्लाह तबारक व तआला ने बाज के ऊपर फजीलत अता की है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दस ती क्या खसूसियत थामच और औरत को भी कुछ खसूसियतें अता की है। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चों की तरबियत का मामला लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सलाहियत औरतों में ज्यादा रखी है, किन के मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में। इसी तरह से घर गृहस्थी की जो सामान की निगरानी
या खाने पीने का इंतजाम करना, ये सोरी यम फजीलत या यम गुण थमित अल्लाह तबारक व तआला केमिस मज, खातूनों में या औरतों में। आपने देखा होगा कि अगर मर्द कितना भी बहादुर हो, मर्द अगर कितना भी सियाना और कितना भी अक्लमंद हो, लेकिन वो बच्चों की तरबियत, वो घर में खाना पकाने का इंतजाम उस हिसाब से नहीं कर सकता है जिस हिसाब से एक औरत कर। तो इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने किन को फजीलत अता की है? औरतों को मर्दों के ऊपर फजीलत अता की है। अलबत्ता नान नफका का इंतजाम करना, यानी घर के लिए कमा के लाना, बच्चों के लिए फिर इंतजाम करना, उनके कपड़ों का, उनके रहन सहन का, उनके खाने पीने का, औरत के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, औरत के लिए फिर मकान और उसकी रिहाइश का इंतजाम करना, ये फजीलत या ये क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने किसके पास रखी है? मर्द के पास रखी है। अब अल्लाह ताला फरमान कि इस वजह से, इस फजीलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनासिब समझा अपनी हिकमत से कि मर्द ही इस पर अमीर होना चाहिए। इसकी एक और वजह भी है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ब्याह का थई तो याद हदीस फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि औरत जो होती है ये नाकिसुल अक्ल है, यानी औरत यह इसके पास ये नाकिसुल अक्ल, नाकिसुल अक्ल का मतलब ये नहीं है कि ये क्या अल्लाह ताला बच्चे बावली या बेवकूफ ना, बल्कि मर्द के मुकाबले में फैसला लेने की कुव्वत या किसी मामले में मामला फहमी की सलाहियत वो ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने किसके पास रखी है? मर्द के पास रखी है। तवे आयत पढ़मुत और हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा और अहादीस में भी है कि गवाही के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द की गवाही के मुकाबले में औरतों की गवाही भी नस्फी रखी है, यानी जहां एक मर्द की गवाही मोतबर है वहां एक मर्द के बजाय दो औरतों की गवाही मोतबर मानी। तो ये भी एक है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को एक ऐसा निजाम अता किया है जिस निजाम की वजह से वो महीने के मखसूस दिनों में न तो अल्लाह की इबादत कर सकती है, नमाज अदा कर सकती है, न तिलावत अदा कर सकती है। तो ये उनके दीन या ये इनके इस्लाम का ये जन कमी या कसूर है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर फरमाया कि बाज़ सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को फजीलत अता की है मर्दों पर, मगर कुछ हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को फजीलत किन के ऊपर की है? अच्छा, घर को चलाने के लिए क्योंकि इंतजामी मामलात और इस बाहर की दुनिया में इस मामलात की सलाहियत वो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ज्यादा अता की है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ही औरत पर क्या रखा है? निगरान रखा है या उसका अमीर मुंतखब किया है। और दूसरी बात, ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह यह है वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो मामला फैमिली की सलाहियत, मामलों को सुलझाने की अहलियत वो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ज्यादा औरतों के मुकाबले में रखे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों के ऊपर निगरान रखा है। दूसरा, बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, दूसरा यह है कि मर्द अपना माल खर्च करता है किन के ऊपर? अपनी औरत के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी, यानी नानो नफका की जिम्मेदारी, फिर उनके लिए रिहाइश का इंतजाम, उनके लिए कपड़े लाने का इंतजाम, उनकी जरूरियात को पूरा करने का जो इंतजाम या उन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो किसके सुपरद हैं? वो मर्द के सुपरद हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को किनके ऊपर कवाम रखा है या इंतजाम रखा, अमीर रखा है? औरतों के ऊपर। अच्छा, मगर ये तन कैसे आकत याद था हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस बात पर गैर मुस्लिम या गैर अक़वाम इस्लाम पर एतराज करते हैं कि इस्लाम का ऐसा मजहब है कि इन्होंने औरतों और मर्दों के हुकूक जो है ये बराबर बराबर नहीं बयान किए हैं, बल्कि औरतों को मर्दों के मुकाबले में क्या समझा है? कमतर समझा है। मगर ये हकीकत नहीं है। क्या ये तो सिर्फ घर गृहस्थी के इंतजाम को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सफर को या इस गाड़ी को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह उसूल बनाया है कि मर्द निगरान है किन के ऊपर? औरतों के ऊपर। और यह ऐसे ही नहीं रखा अल्लाह तबारक व तआला ने निगरान, बल्कि मर्द में वो सलाहियतें, वो क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से
अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ही औरतों के ऊपर निगरान रखा है। वरना सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मर्द और औरतें अगर ये अमल सालिह करेंगे तो अल्लाह के दरबार में ये दोनों अपने अपने अमलों का सही बदला पाएं। और कल की आयत में भी हमने पढ़ा है इम्रोन गई कि मर्द और औरतें ये अल्लाह के नजदीक बराबर हैं अमाल के मुकाबले में। यानी औरतें भी अगर नेक अमल करेंगी, मर्द भी अगर नेक अमल करेंगे तो दोनों को अच्छा सिला मिले। तथ मामलस में डिफरेंस ये सिर्फ घर के इंतजाम को चलाने के लिए, घर की इस गृहस्थी को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजामी तौर पर मर्द को उन पर निगरान रखा है। इससे ये ना किसी मर्द को धोखा हो कि बुशुस वहीं अमीर तो मैं जैसे चाहूं हुक्म चलाऊं किस पर, औरत पर या अपनी बीवी पर। यह इस्लाम का मंशा नहीं है, बल्कि कुरान पाक में ब्रोह में पढ़ो, कुरान ने मर्द और औरत जो है या बीवी और शौहर के ताल्लुक के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि हमने इस शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुक रखा है वो कौन सा है, मवद्दतन व रहमा। मवद्दत का तर्जमा किया जाता है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। यानी इनके मामले में कौन सा ताल्लुक होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक होना चाहिए। वह रहमा, और किसका ताल्लुक होना चाहिए, रहमत का ताल्लुक। यानी मर्द औरत के लिए रहमत बनना चाहिए और औरत मर्द के लिए रहमत बनना चाहिए। यानी इस अमीर आसे मर्द ये गश्ना आसुन, वो अमीर नहीं होना चाहिए कि ये अपनी औरत पर जुल्म करे, ये उस पर अपने हुक्म चलाए ना, बल्कि ये रहमत का, मोहब्बत का अमीर होना चाहिए। ये इसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखना चाहिए और रहमत का ताल्लुक रखना चाहिए। जिस ये थनस मतलब एमियो दयम का ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम की है और कुरान में भी इसका जिक्र है, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा कि जब मियाँ और बीवी यमजन बहरहाल ये अपने मामलात बाहमी मशवरे से तय करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि मर्द अपनी मर्जी ही चलाता रहेगा, नहीं, बल्कि मर्द को ये हुक्म किया गया है कि वो औरत के साथ क्या करे, मशवरा करे। बुद्धिमता मिसाल के तौर पर हमने पीछे पढ़ा है कि जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो कितने टाइम के लिए दूध पिलाएं, 2 साल के लिए, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है कि रज़ाअत, रज़ाअत का है, दूध छुड़ाने के लिए जो लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला ने वहां इस्तेमाल किया है वो मशावरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी दोनों मियाँ और बीवी बाहमी मशवरे से इस बच्चे का दूध छुड़ाएंगे। इससे पता चलता है कि मर्द युजन यहाँ पनी मर्जी थोपित केमिस पे, खातून पे क्या, बल्कि इनके बीच में मोहब्बत का, मवद्दत का, बाहमी मशवरे का ताल्लुक होना चाहिए। दयम कथ अत इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर किसी चीज पर इनके बीच में नजा हो जाए, बहरहाल यमन पज पान ये नजा, इसको खत्म करने के लिए आपस में मिल बैठकर मामला को तय करना चाहिए और यम डिफरेंसेस यम दूर करें। हाँ, अगर किसी जायज बात में इनके बीच में कोई ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन गसन, अगर औरत की दलील या औरत का मशवरा ज्यादा मबनी पर दलील है तो मर्द पर लाजिम है कि वह औरत के मशवरे पर अमल करे। हाँ, अलबत्ता सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने इन मामलात में ज्यादा किसको रखी है, मर्द को रखता हुआ। आयत में अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द जो है ये निगरान है, ये जिम्मेदार हैं किनके ऊपर, औरतों के ऊपर। अच्छा, ये तो अल्लाह का एक अजीम इंतजाम है, सारे खुद बड़ रहम और फजल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर किया है। इस्लाम औरतों को नान और नफका कमाने के लिए मजबूर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया कि मर्द इस वजह से निगरान है, मर्द इस वजह से अमीर है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फजीलतें मर्द को अता की हैं, किनके मुकाबले में, औरतों के मुकाबले में। मगर फिर से याद रखिए, यह फजीलत उस बुनियाद पर नहीं है कि अल्लाह के नजदीक औरत नाकिस है या औरत कमजोर है या उसमें कोई अमल की कमी है। यह फजीलत सिर्फ घर के इंतजामात के हिसाब से चलाने के लिए फजीलत है। दईमा वन कि यह अपना माल और अपना जो नफका है ये इन पर खर्च करते हैं। इस आयत से पता चलता है कि घर गृहस्थी के लिए जो खर्चा है उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, मर्द पर आयद होती है, इसीलिए उसको जिम्मेदार करार दिया गया है। ये बोड़ बार एहसान जो इस्लाम ने औरतों पर किया है। इस्लाम तालीम ये कि अगर औरत बेनिकाह हो, यानी अभी इसका निकाह नहीं हुआ हो, तो उसके नान नफका का और उसके जो अखराजात हैं उसका इंतजाम उसको मुकल्ला बना है उसके बाप को, यानी इंतजाम कर
अमसुन मोल, अगर बाप नहीं है तो इसके भाई या इसका चचा इसका मुकल्लफ है कि इसके नान नफका और इसके इंतजाम जो अखराजात उनका इंतजाम करे। और जब ये निकाह में आ जाए किसी मर्द के तो इसके नान नफका की जिम्मेदारी, इसके तमाम अखराजात की जिम्मेदारी किसके हक में आती है? शौहर के हक में। गो इस्लाम छुन औरतन, ये मगरिब का प्रोपागंडा है जहां मगरिब ने औरतों को नान नफका और कमाई के लिए मजबूर किया है और ऊपर से ये जुल्म किया है, एक तो वो कमा कर लाती हैं, दूसरा फिर घर से कमा कर जब घर आती हैं तो घर का काम भी उनको क्या करना पड़ता है। ये बोड़ बार जुल्म इस मगरिबन को कुमन से आजादी निस्वा के नाम पर मगरिब ने औरतों को घरों से बाहर निकाला और कहा कि आप दफ्तरों में, आप कारखानों में काम करो, घर की जिम्मेदारी आपसे छूट जाएगी। मगर अजीब इत्तेफाक यह है कि उनको बाहर का काम भी करना पड़ता है और जब वहां से थक हार कर आती हैं तो घर का इंतजाम भी उन्हीं को, क्योंकि ये फितरत बगावत, क्योंकि फितरत असल में क्या है कि औरत घर गृहस्थी का इंतजाम संभाले और मर्द बाहर का इंतजाम संभाले, उनके लिए कमा कर लाए, उनके लिए नान नफका इंतजाम करे। सारे खुद बड़ जिम्मेदारी यस जन अल्लाह तबारक व तआला औरतन पे खवातीन पे थोमस वो है बच्चों की तरबियत। बदकिस्मती सान आज हमारी माएँ ये फरीजा अंजाम नहीं देती हैं। आज साई माज पन फर्ज समझन ज्यादा खुद ज्यादा क्या कि हमें अपने बच्चों के लिए और अपने खावत के लिए पकाना है, उनके लिए अच्छी अच्छी नियामतें और अच्छे अच्छे डिशेस बनाने हैं। ये कि जन इस्लाम ने असली जिम्मेदारी जो औरत के लिए रखी है, इसीलिए उनको घर का इंतजाम चलाने के लिए कहा गया है कि ये अपने बच्चों की क्या करेंगी, सही तरबियत करेंगी। यम सातन माज ये फरीज अंजाम दिवन, तब जाकर हसन और हुसैन निकलते थे उनकी कोख से, तब जाकर मोहम्मद बिन कासिम जैसे लड़के उनकी कोख से निकलते थे, तारिक बिन जियाद जैसे उल अज़म इंसान पैदा हुए। मगर ये माजो त्रव ये काम, बहरहाल उन्होंने अपने आप को सर्वेंट्स या मेड्स बनाया, यानी सर्वेंट या मेड को ये बने ज्यादा को ज्यादा सन खिदमत गुजार। अगर आपने देखा होगा यमो खानदर कोरमुत तुमन आसे तजुर्ब, हमारी जो बीवियां हैं ये हमारी खिदमत गुजार हैं, ये बच्चों की तरबियत करने वाली नहीं है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा ये उम्मत को भुगतना पड़ा है कि यमजन सान नौ नस्ल ये तरबियत से आरी और तरबियत से खाली है। वरना इस्लाम और इस आयत से पता चलता है कि औरतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि उन्हें असल में अपने नौनिहालों की और अपने बच्चों की क्या करनी थी, तरबियत करनी थी। अजीब बदकिस्मती अशास, अगर आज कंस आसन नेचू, अगर वो मतलब नमाज नहीं पढ़ता है या अगर वो अच्छे अच्छे काम नहीं करता है, इल्जाम किसके साथ थोपा जाता है? आमतौर पर यह फलान सुन नेचू, यह हमिस सुन नेचू, मास्टर जी नेचू हमसन। हालांकि असल में इल्जाम किस पर आना चाहिए? असल में तो ये इसकी मां पर इल्जाम आना चाहिए जिसने इसकी सही तरबियत नहीं की है। मर्द औरतों पर निगरान है, यानी मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं। मर्द इस दुनिया की इस जिंदगी की गाड़ी को चलाने में मर्द को अमारत का दर्जा दिया गया है। इस वजह से बिमा फद्दलल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज को बाज के ऊपर कुछ मामलात में फजीलत अता की है। औरत को घर गृहस्थी के मामलात संभालने में फजीलत अता की है और मर्द को मामलात को सुलझाने में और नान नफका कमाने में फजीलत अता की है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और मर्द को इस वजह से भी फजीलत है क्योंकि वो बाहर जाकर अपने इस अहलो अयाल के लिए कमा कर लाता है। मगर याद रखिए, मर्द को जो अमीर बनाया गया है ये कोई जाबिर या अपनी मर्जी थोपने वाला अमीर नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत के साथ, रहमत के साथ अपने घर वालों के साथ ताल्लुक रखने वाला अमीर है, दोस्ताना अमीर है, जो बाहमी मशवरे से इस जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाने वाला। यह सुनहरी उसूल युस जन अल्लाह तबारक व तआला घर गृहस्थी इंतजाम चलाने खतर अता कोरमुत। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन ऐसे अमी मुताबिक अमल करने तौफीक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।